Welcome to Qulubul Quran fi Zawiyatul Quran. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. ادھر حسب نسب تو چلتا نہیں، ادھر تو قلب ہی ہے. ادھر حسب نسب تو چلتا نہیں، ادھر تو قلب ہی ہے. ادھر سید قریشی کی کیا پرواہ جو سیاہ کار قلب ہے. اہل حرفہ اہل سیاست سبھی کے لیے ایک فرمان ہے. اہل حرفہ اہل سیاست سبھی کے لیے ایک فرمان ہے. تھا جو بھی قلب کی یاد سے غافل وہی شخص دیوان ہے. اللہ کی توفیق سے الحمدللہ آج اس ٹرانسمیشن کی 21ویں نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے. کیا کہوں اس رب کے جو قلب کو پھیرانے، گھمانے، رد و بدل اور چینج کرنے میں محو مصروف ہے. قلب یہاں اور اس کا جو ریموٹ ہے وہ رب کے ہاتھ میں ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان تیرا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہے، جب وہ چاہتا ہے جدھر چاہتا ہے گھما دیتا ہے. آئیے آج کے پارے کا آغاز کرتے ہیں جو آپ کو ایک نیا میسیج، ایک نیا کردار دکھائے گا. اللہ کی توفیق سے آغاز کرتے ہیں. آج ہمارے پاس پارہ نمبر 21 ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس پارے کو ریسرچ کیا گیا تو مجھے ٹوٹل 6 آیات ملی جو کہ اس پارے کے اندر قلب کے ذکر کے لیے پائی گئی. سب سے پہلے ہم ایک کالم بنائیں گے. اس کالم میں آج کے سپارے کی آیات لکھیں گے اور اوپر آیات نمبر ہوں گے. آیات کے ساتھ آیات کے نمبر اپنے اپنے نوٹس میں ضرور لکھیے گا. ہمارے پاس 21ویں پارے کی سورت روم ہے اور آیت نمبر 59 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دلوں پر مہر لگا دی جو دل علم نہیں رکھتے تھے. لا علم دلوں پر، نہ جاننے والے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر ثبت کر دیتا ہے اور اس کے لیے یتبع اللہ، یہ اسٹیمپ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. پوائنٹس لکھیں گے اور لا علم دل لکھیں گے. لا علم دل کون سا ہوتا ہے؟ ایسا دل کہ وہ اپنے دل کو ہی نہیں سمجھتا، ایسا انسان جس کو اپنے بارے میں ہوش ہی نہیں، ایسا انسان کہ جس کی قلب پہ مہریں لگ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ دل کو سیاہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کے اوپر پردے ڈالے جا رہے ہیں، لیکن بندہ ہے کہ اس کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مہر کس کی لگائی ہے؟ لا علمی کی مہر لگا دی ہے. لا علمی کا مطلب ہے کہ یہ بندہ نہیں سمجھے گا، یہ بندہ نہیں سدھرے گا، تو مہر لگی لا علمی کی جب اس کو علم میں آئے گا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ اب نہیں پڑھ سکتا، یہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے دلوں پر مہر ثبت کی ہے. کون سی مہر ہے؟ وہ لا علمی ہے. کیسے؟ قلب کو پھر اللہ علم، پہچان، عرفان، ہدایت نصیب نہیں کرتا. آگے نئی سورت شروع ہوتی ہے، سورۃ الاحزاب.
आयत नंबर 4 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी। जौफ सीने को कहते हैं। लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि तस्निया का सीगा आ गया और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने किसी सीने में 2 दिल नहीं बनाए। ये है उस आयत का पॉइंट कि मैंने किसी भी सीने में 2 दिल नहीं बनाए। इसकी वजह क्या पेश आई कि अल्लाह ताला को ये कहना पड़ा कि मैंने 2 दिल नहीं बनाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरत अहज़ाब की एक आयत नाज़िल हुई जिसमें जब अल्लाह ताला ने हजरत ज़ैद को मुंह बोला बेटा बनाया तो अल्लाह ताला ने उसके मारने से इनकार कर दिया और कहा कि नबी नहीं, ये आपका मुंह बोला भाई बन सकता है, लिहाजा आप अहकाम को बदले नहीं और ये जो नेपालक यानी किसी के बेटे को आप अपना बेटा कह रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर इस कहानी को अल्लाह ने तशबीह दे दी कि मैंने किसी साथ ही अल्लाह ताला ने मिसाल दी है, एग्जाम्पल ये दी है कि नबी जैसा कि मैंने किसी सीने में 2 दिल नहीं रखे, इस तरह कोई ऐसा बच्चा जिसके नाम के साथ 2 वालिद हों वो आप नहीं बना सकते। 2 दिलों से मुराद असल में अल्लाह ने 2 बाप या 2 वालिद की तरफ इशारा है। बच्चा जन्म किसी ने दिया और आप उसको अपना बेटा कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा नेपालक यानी मुंह बोली औलाद के बारे में अल्लाह ने कहा है और उसका इनकार किया है। चूंकि नेपालक मुंह बोला बेटे की कहानी ये है कि वो होता किसी का है और आगे नाम किसी और के साथ लग जाता है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा जैसे कि मैंने आपके सीने में 2 दिल नहीं रखे, ऐसे ही आप एक ही बच्चे के 2 बाप नहीं हो सकते। यही आगे कंटिन्यू करेंगे इस बात को। आगे हमारे पास सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 5 है। वलकिन्ना तअम्मदत कुलूबुकुम, जो तुम आमदन गुनाह कर लो यानी कि जानबूझकर, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकिन्ना तअम्मदत कुलूबुकुम, दिल का गुनाह। जब ऐसे हुआ वलकिन्ना तअम्मदत कुलूबुकुम, जब ऐसे हुआ तो अल्लाह ताला ने कहा कि नबी परेशान ना हो, इसका कोई हर्ज नहीं है। गुनाह वो है यानी गलती वो है, तो दिल के गुनाह अल्लाह ताला ने वलकिन्ना तअम्मदत कुलूबुकुम में कहा है कि गुनाह वो होता है जो दिल के इरादे से किया जाए, जो ऐसे आपके अनजाने में गलती से हो गया। और ये उसी आयत का ही पस मंजर है कि जिसने कहा कि एक ही बच्चे के 2 बाप नहीं हो सकते, तो फिर इस तरह से कहा कि अल्लाह ताला ने कि जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने कहा कि कोई बात नहीं, ये कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन ये है साथ ही अल्लाह ने निशानदही की कि गुनाह वो होता है जो दिल से किया जाए। तो चूंकि नियत इरादा उसका महवर दिल होता है, तो अल्लाह ताला निशानदेही कर रहे हैं कि जो दिल के इरादे से गुनाह किया जाए वही गुनाह होता है, और इसको हम इसके साथ रिलेट कर देंगे। आगे हमारे पास है सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 10 है। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, उनके कलेजे मुंह को आ गए। दिल के लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, कलेजा फट गया, कलेजा मुंह को आ गया। और इसके लिए हम नाम रखेंगे ऐसा दिल जो खौफ से फटने लगे, ऐसा दिल जिस पे खौफ तारी हो। अब असल में यही वो दिल है, इस पे खौफ दुनियावी खौफ की बात कही जा रही है कि बस जैसे बाज़ दफ़ा इंसान घबराहट में आ जाता है। इस आयत में जिक्र है जंग अहज़ाब का
کہ उस वक्त क्या सूरत हाल थी। लश्कर देखे और ये सारी चीज़ों को देखकर उनके दिल पे एक रोब तारी हुआ और वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, उनके कलेजे जो थे वो मुंह को आने लगे। तो ये वो दिल की कैफियत है इस आयत में जो अल्लाह ताला ने बयान की है कि जब दिल घबराहट का शिकार हो। तो ये भी अक्सर हमारे साथ हो जाता है, ऐसी बात, ऐसा अनहोना वाकया जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, तो फिर वो दिल पे तारी होता है और दिल घबराहट में आता है। इसको हम ये कहेंगे कि ये कैफियत है, इसको दिल की कैफियत कहा जा सकता है। और ये जिंदगी में कभी कभार होता है। आगे हमारे पास सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 12 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं फी कुलूबिहिम मरज़ुम मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु, उनके दिलों में बीमारी थी जिसकी वजह से उन्होंने अल्लाह और रसूल की अहद की पासदारी नहीं की। हम इसको कहेंगे रोग वाला दिल, या इसको बीमार दिल भी कहा जा सकता है। ये आयत असल में जंग अहज़ाब को ही प्रेजेंट कर रही है कि ये जिनके दिलों पे मोहर लग जाती है, फिर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वादों को तोड़ता है, इताअत नहीं करता, वादों की पासदारी नहीं निभाता। तो ये जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है, यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी। अब ये किस वजह से होती है? ये भी दिल की बीमारी की वजह से होती है। जो रसूल और अल्लाह को नहीं मानते या उनके हुक्मों को नहीं मानते, तो वो भी इसकी वजह ही यही दिल की बीमारी होती है कि उनके दिलों में अल्लाह ने उनके दिलों को बीमार कर दिया होता है। वो इस काबिल ही नहीं होते कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करें। आगे हमारे पास सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 26 है और आज के सेगमेंट की इस पारे की ये आखिरी आयत है। आयत के अंदर है फी कुलूबिहिम रुअब फरीक़न तक़तुलून, ऐसा दिल जिसके अंदर रोब हो, हम लिखेंगे, उसको हम प्रेजेंट करेंगे रोब वाला दिल। यहाँ अल्लाह ने ग़ज़वा अहज़ाब की कामयाबी बताई है कि उस टाइम आपकी रोब, आपकी दहशत काफिरों पर अल्लाह ने ऐसी रखी कि उनके सामने ही तुम एक गिरोह को कत्ल कर रहे थे और एक गिरोह को पकड़ पकड़ कर कैदी बना रहे थे। ऐसी कैफियत, ऐसी सिचुएशन रोब तारी हो जाए जब आपकी दहशत कायम हो। ये कब होता है? जब आपके दिलों में अल्लाह ताला रोब डालता है। यहाँ हम पॉइंट लिखेंगे फतह और नुसरत की शक्ल में। जाहिर बात है, जब आपको फतह मिलती है तो उसका मतलब है कि आपके दिल को अल्लाह ने रोब से भरा और आपकी दहशत को दूसरे के ऊपर कायम कर दिया। 21वां पारा मुख्तलिफ किरदारों के साथ आज इसका हमने विजिट किया। सबसे पहले हमें निशानदेही हुई ला इल्म दिल की कि अल्लाह बंदे को इल्म कब नहीं नसीब करता, जब उसके दिल पर अल्लाह ताला मोहर लगा देती। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि मना किया और उसको गुनाह कहा, बेपालक औलाद को पाल लेना और उसके साथ हकीकी बाप का नाम की बजाय किसी और का नाम बनाना। इसको अल्लाह ताला ने मिसाल दी कि जैसे किसी इंसान के एक ही बच्चे, जैसा कि एक ही बच्चे के हकीकी दो बाप नहीं हो सकते, हकीकी बाप एक ही होगी। मैंने किसी सीने में भी दो दिल नहीं बनाए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा दिल, ऐसी कैफियत कि आपके ऊपर कभी तारी हो, कलेजा मुंह को आए, दिल फटने लगे,
یہ ایک کیفیت ہے جو کبھی کبھار ہوتی ہے، یہ دراصل ساری کیفیات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیمار دلوں کا ذکر اور ساتھ ہی ریزن بتا دی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے ان کے دل بیمار ہوتے ہیں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اے نبی جب میں نے آپ کو فتح و نصرت دی اور تمہیں کافروں کے سامنے ہی ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے، ایک کو قیدی بنا رہے تھے۔ آج نہ تو غزوہ احزاب ہے نہ نبی ہے۔ یہ آیت آپ اپنے اوپر کیسے لیں گے کہ زندگی میں اللہ فتح و نصرت دیتا ہے، آپ کے سامنے آپ کے دشمن کو زیر کرتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری فتح کے پیچھے دل کا کردار ہے۔ آپ کے دل میں اللہ نے وہ طاقت دی، وہ مضبوطی دی اور رخ جمایا۔ یہی تھا آج کے 21ویں پارے کا پریزنٹیشن اور یہ اس کا نقشہ ہے۔ اللہ کے لیے اس کو قبول کیجیے گا اور اس کی روشنی میں اپنے دل کی صفائی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واشانا رب دے قرآن دیا، قرآن دیا، واشانا رب دے قرآن دیا، کیویں 30 پارے بنائے نے، کیویں جگمگ جگمگ کر دیا سورتاں نے، کیویں 30 پارے بنائے نے، کیویں جگمگ جگمگ کر دیا سورتاں نے، کیویں لفظاں دے نظارے نے، کیویں لفظاں دے نظارے نے، کیویں کرناں نورانی کلام دیاں